आज के अतिथि विशेष है श्री भानु प्रताप सिंह हाडा। सर ये जो मेडिकल क्षेत्र है स्पेशली निजी, तो उसमें हाउ फियर्स इज द कंपटीशन कैसा रहता है? I will not deny there is competition because there is no business for charity. Business is for business. So I will not deny that there are no challenges or there are no competition. There are competitions because everybody is an investor out here. Even for the treasury care to sustain, they have to work a business model. अगर वो ट्रस्ट का हॉस्पिटल भी है, कोई ट्रस्ट भी चला रही है, तो उसको भी प्रॉफिटेबल तो बनाना पड़ेगा। ये तो एंड टू एंड उस हॉस्पिटल बिजनेस को चलाने को कैसे मीट करेंगे एक्सपेंसेस को। सो आप चाहे वो ट्रस्ट चलाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर चलाए या कोई इंडिविजुअल नर्सिंग होम चलाए, देयर इज अ कंपटीशन एंड दिस कंपटीशन विल सस्टेन because everybody wants to survive. So I will not deny on this point that there is no competition. There is competition. But only the best thing of this competition is everybody is looking for better practices. Right. The end beneficiary will always be the patient. So competition is good. For me, according to me, competition is always good. People with better know-how, people with better tools, people with better technology will always be able to serve you better. The end user जो है, that is the common people, will be benefited. So for a common person, competition is always good. But at the same time, this competition can make your treatment expensive. There you are. This is the most key factor. This competition. अच्छा डॉक्टर्स है. Yes. तो दूसरी अस्पताल उसको सारा पे ऑफर करके खींच सकती है. Because people consider it, and I do also believe that it is a doctor-driven business. Secondary is infra, and third is support. So I am a part of third system. Where at times I become first, where at times I become third. Right. If there is a sick place and if you want to revamp it, the number 3, the support service becomes number 1. Right. The operations can always make it number 1. Number 1. Support service can always make a hospital or any healthcare institution number 1 by her services. Support services are more important. The clinical procedure is one, but supporting that there are 10 activities which again changes the main, which is also the game changer for the entire institution. Right. Support services are the game changer. But there will be times when this hospital will be seeing rehab centers, जहाँ पेशेंट घर जाना नहीं चाहेगा, वहीं रहना चाहेगा हॉस्पिटल के हिस्से में, जो कि यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में कॉमन चीज़ है कि हेल्थ केयर गिवर्स जो हैं आपको घर आके हेल्प दे के जाएंगे. देयर विल बी डिफरेंट मॉडल्स. सम ऑफ देम आर स्टिल वर्किंग इन इंडिया बट नॉट टू द लार्ज एक्सटेंट. इंडिया में भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस चालू हो गई हैं जहाँ होम केयर गिवर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद हॉस्पिटल्स, दे आर इंडिविजुअल होम केयर गिवर्स. The moment it becomes an institutional, it will be having the end user, the patients, will be more benefited with these services. Right. आप सर व्यक्तिगत रूप से होटल मैनेजमेंट को ज़्यादा पसंद करते हैं कि ये हेल्थ केयर जो देखिए इनिशियल यंग स्टेज में जब हम स्टार्ट हुए थे, नो डाउट होटल वाज माय फर्स्ट लव एंड स्टिल, एंड इट इज नॉट होटल, बेसिकली इट वाज टूरिज्म. एंड व्हाई टूरिज्म हैड हेरिटेज. टूरिज्म हैड सो मेनी वेन्यूज टू बी एक्सप्लोर्ड. और घूमना आदमी की प्रवृत्ति है, तो वी वर कमिंग अक्रॉस डिफरेंट एक्सपीरियंसेस by meeting different people, so it was, the entry level was so high. Right. Gradually, but when we came to healthcare and the concern people showed to us, the respect people showed to us, that made me realize that healthcare could have been my first choice. But if I was given a choice 20 years back, I could have chosen healthcare. At that time, hospitality came to mind, and today I'm equally hospitable with hospitals. Right. I take that way. ये मेरे को होटल में सीखा हुआ मेरा सेंसिटाइजेशन गेस्ट के प्रति has helped me a lot in hospitals for understanding the people. That's why I say it's a hand-in-glove situation for me. I always have an upper edge when it comes to sensitization because hotels is quite a mature industry whereas compared to healthcare. Healthcare is just blooming and it will take some time to settle down. Right. And become a seasoned and a mature industry. सर आप अपने स्टाफ में क्या गुण देखना चाहते हैं, आइदर इन होटल मैनेजमेंट हो या इस मेडिकल के? मेरे स्टाफ में मेरी व्यक्तिगत राय क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी लॉयल एंड ऑलवेज थिंक दैट यू आर हियर बाय चॉइस. नोबडी इज फोर्स्ड टू. सो बी लॉयल. नंबर 1, लॉयल्टी पेज, लॉयल्टी सस्टेन्स एंड लॉयल्टी मेंटेन्स कंसिस्टेंसी. लॉयल वही रहेगा जो कंसिस्टेंट होगा. person who is not consistent can't be loyal.
So loyalty is one attribute which I look into any person working with us. Loyal to the company and the institution you are working for, not to me. Number two जो मैं देखना चाहूँगा, a person has to be a believer. Believer in what? Himself. Because you are there by choice. आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं, तो जो काम आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं वो भी आप उसमें बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपसे क्या अपेक्षा की जाए? नंबर 3, आपका फॉलो। किसी भी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए लाइफ के हर पहलू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका फॉलो अप। काम हुआ कि काम हुआ, कैसे हो रहा है? मैंने स्कूल में पढ़ाई करी, उसका फॉलो अप लिया, रिवीजन किया तो मैं अच्छे नंबर लेके पास हुआ। मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी, ढंग से उसका फॉलो अप लिया तो मैंने उसकी इंटरव्यू की तैयारी करी, मैं कामयाब हुआ। तो फॉलो अप जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जिसकी आदमी की जिंदगी में फॉलो अप नहीं है, वो ये मानता हूँ कि वो हर क्षण हर पल गलती करेगा। फॉलो अप वाले का आदमी की त्रुटियां और गलतियां, मिस्टेक्स कम होती है, तो वही लोग कामयाब भी होते हैं। क्योंकि मैं मेरे स्टाफ में 3 चीज डालूंगा, काम सब करते हैं लेकिन अपने काम का फॉलो अप रखो। फॉलो अप तुम्हें कामयाबी देगा और अच्छे परिणाम देगा, कभी डिले नहीं करेगा। You will always be considered as a sincere, responsible employee once you have a strong follow-up. If you don't have a strong follow-up, you will never be considered as sincere and responsible. Responsible आदमी का सबसे बड़ा फीचर होता है follow-up लेना। तो ये सब follow-up जिसका strong होगा उस आदमी का मैनेजमेंट हमेशा strong होगा। Devotion, dedication, determination, these are the terms which are used by everybody. पर इन तीनों चीजों को फुलफिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ, that is follow-up. You are dedicated, yes, but what is your follow-up for your dedication? Everything has to be followed. Right. And if you follow religiously, the outcome is always perfect. आपने कई होटलों में काम किया, सारी बहुत बढ़िया 5 स्टार होटलें थी, तो उसमें आपको विभिन्न श्रेणियों में प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले, जो आपके प्रयासों के कारण यह संभव हो सका। तो हाउ वाज इट मेड पॉसिबल? तो आपको आपके कुछ विचार यंगर जनरेशन को मार्गदर्शन मिले। इसको देखने का नजरिया है। पुरस्कार हमको मिले, मतलब हमारे संस्थान को मिले। तो जब कभी कोई पुरस्कार मिलता है तो पुरस्कार उस टीम का होता है, टीम वर्क उस टीम का होता है। आप उस टीम का हिस्सा थे, राइट, ये मान के चले। टीम का आप में विश्वास था, आपको टीम में विश्वास था, तो मैं पुरस्कारों को उसी नज़र से देखता हूँ। इट इज टीम एक्colades एंड विच मोटिवेट्स द टीम। अगर पुरस्कार मिला है, आपको किसी ने रिकॉग्नाइज किया है, एक्नॉलेज किया है, तो जो एक्नॉलेजमेंट और रिकग्निशन आपको मिला है, तो एज ए लीडर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे नीचे वाले आदमी तक पहुंच जाना चाहिए कि ये तुम्हारी वजह से मिला है। हर एक उस व्यक्ति को ये मैसेज जाना चाहिए कि आप लोगों की वजह से ये पुरस्कार किसी भी संस्थान को, किसी भी मैनेजर। ये तो आपकी ह्यूमिलिटी है, नम्रता, विनम्रता है, लेकिन आपने भी कुछ हार्ड वर्क प्रयास किए होंगे ना कि भाई ये चैलेंजिंग काम। सर, आपसे अपेक्षा की जाती है आप अच्छा काम करेंगे, आप अच्छा काम करने की अपेक्षा पे खरे उतरते हैं, परिणाम स्वरूप आपको अवार्ड मिलता है। तो अपनी अपेक्षाओं पे हमेशा खरे उतरे, उसका अवलोकन हुआ संस्थाओं के द्वारा, दूसरी संस्थाओं के द्वारा, सरकारी संस्थाओं के द्वारा, तो हमको उसका पुरस्कार मिला, हमको अवार्ड मिला इन टर्म्स ऑफ, उसको हमने टीम को अवार्ड कर दिया कि भैया आप लोगों की वजह से। हम सिर्फ ये कहते हैं आपसे जो अपेक्षित कार्य करने के लिए अपेक्षा की जाती है, वो अपेक्षाओं पे आप खरे उतरते हैं तो आप अवश्य ही अवार्ड जीतते हैं। यही आपको युवाओं के जो मार्गदर्शन के लिए ये पॉइंट, युवाओं के लिए सबसे बड़ा महत्व है। अवार्ड्स की आशा ना करें, कीप डूइंग योर वर्क सिंसियरली, प्रैक्टिस परफेक्शन, प्रैक्टिस perfection, there will be day that you will be perfect. Don't look for perfection, practice perfection. Right. I say practice perfection and one day everybody will be perfect. Right. Perfection can be practiced only when you are there as a team. All sources has to be at one direction, one way. Right. धारा प्रवाह जो होता है उसका एक ही दिशा में होता है, तभी उसका महत्व होता है। सही बात। So मैं तो नई जनरेशन को ये कहता हूँ भी, ना अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखती, ना अर्जुन होता है, न एकलव्य को अपने गुरु का ज्ञान सुनने को मिलता, न एकलव्य होता। धनुर्धर दोनों थे, दोनों अपनी अपनी जगह विशेष हुए। तो हर व्यक्ति अपनी जगह उतना ही मशहूर हो सकता है अगर वो शांति से, समझदारी से, ये शांति समझदारी बड़ा वेग टर्म है,
उसको आप कैसे देखते Define नहीं कर हो सकते। डिफाइन नहीं कर सकते, अगेन इनटेंजिबल है। तो आपके एफर्ट्स को, हर एफर्ट्स टेंजिबल नहीं होगा, हर एफर्ट्स टेंजिबल नहीं होगा, हर एफर्ट्स इंटेंजिबल भी नहीं होगा। So the young generation need to keep a balance between tangible and intangible in their efforts. Keep a balance between tangible and intangible and practice perfection. You will get a platform of your choice. Time will come. You will get it. It's better to be prepared for an opportunity than to have one and not being prepared. It's good to be prepare yourself for an opportunity rather than waiting for an opportunity and then preparing yourself. पहले से तैयारी हाँ, तो करनी आपको चाहिए। हाँ, तो एफर्ट्स आर द फोकस ऑन योर एफर्ट्स, दैट्स इट। सर आपने ये जो जाइडस हॉस्पिटलों में काम किया, तो ये दूसरे अन्य मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों से कैसे डिफरेंट है, अलग है इसका उसका मोडस ऑपरेंडी? मैं अभी विगत 7 सालों से जाइडस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था। अभी कुछ ही समय पहले मैं जाइडस हॉस्पिटल से ये सर्विसेज से निवृत्त हुआ हूँ। मेरा ये मानना है कि जाइडस का जो तरीका था उसमें 3 महत्व चीजें उन्होंने ध्यान में रखी। इस शहर को देखते हुए, वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, वो तमाम एग्जिस्टिंग की कमियों को देखते हुए बनाया गया कि वो सारी कमियां इस एग्जिस्टिंग नए सिस्टम में नहीं रहे, क्योंकि इस दौर का नया अस्पताल था। तो विगत पिछले कई सालों में जो कॉर्पोरेट छोटे छोटे हॉस्पिटल खड़े हुए, उनमें जो विगत विसंगतियां लोगों को नजर आई, उन विसंगतियों को ध्यान उस ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हुए इस बिल्डिंग का इंफ्रा हुआ। अब मेरे व्यक्तिगत अनुभव से पूछोगे तो मैं बीइंग अ होटलियर, मैं इसके ड्राइंग में भी फ्लॉ बता सकता हूँ आपको। फ्लॉ ढूंढना बहुत आसान है, पर ये जो बिल्डिंग बनी है, ये बाकी सब बिल्डिंगों को देखते हुए, उन सब के ड्रॉ को स्टडी करते हुए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को स्टडी करते हुए और डोमेस्टिक हेल्थ केयर को स्टडी करते हुए इंडिया लेवल पे इस स्ट्रक्चर को बनाया गया। तो ये अहेड ऑफ टाइम्स हो गया, एग्जिस्टिंग टाइम से अहेड हो गया। नंबर 2, जो टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल की गई वो लेटेस्ट अपडेशन के साथ खरीदी गई। अभी भी अपडेशन चल रहे हैं, अभी भी अपडेशंस आते हैं, अभी भी मशीन्स पे अपडेट रन किए जाते हैं, रोबोटिक सर्जरीज की जाती है। रोबोट इज द फ्यूचर, people say AI robotics, but man behind robot is again a human. उस रोबोट के पीछे भी इंसान ही है। तो थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जाइडस का अपना जो टूल था, द फुल टाइम डॉक्टर्स कंसेप्ट, वो लेके आए। आप हॉस्पिटल पे वॉक इन करते हैं, वहाँ 5 कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हैं, अपनी मर्जी जिससे आप ट्रीटमेंट कराइए, हमारा डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है। हमारा 24/7 इमरजेंसी सब हॉस्पिटल में चलता है, यहाँ पे भी है। साइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, टेक्नोलॉजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डॉक्टर्स द बेस्ट ऑफ द टाउन, some of them are best in the country, कॉस्ट में भी, and cost as compared to other hospitals is cheaper. So these were few factors which really took Zydus, gave Zydus a platform, a strong platform as far as hospitals are concerned. And today they are working in more than 4 to 5 hospitals. Right. They are all in Ahmedabad? No, there are 5. One they are doing a CSR project with Maruti in Bahucharaji. अच्छा. One they are doing in Baroda. One is in Anand. The oldest hospital of Zydus was in Anand, Ahmedabad, and then Ahmedabad they have a cancer center also, a separate cancer center. So altogether 5 units are there. And the company has a future plan for expansion. Right, sir. सर, भारत में जो अंगदान होता है, ऑर्गन डोनेशन, तो वेरी डिप्रेसिंग, उत्साहवर्धक नहीं है। तो क्या टेबू की वजह से है, या सर, ये शिक्षा का भाव है, चीज़ों को समझाने का और पढ़ाने का तरीका। जैसा मैंने आपको कहा कि स्कूल स्तर पे ही इसका महत्व समझाया जाए और चीज़ों को देखने का नजरिया। हम सब अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग सामाजिक व्यवस्था से आते हैं, हम सब लोग, हमारी पारिवारिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी कम्युनिटी की व्यवस्था, देन सोसाइटी। मैं 2 शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, वन इज कम्युनिटी, अदर इज सोसाइटी। नंबर ऑफ कम्युनिटीज गेट अलॉन्ग एंड देन बिकम्स अ सोसाइटी। The earlier the picture was there were no community, there was society. People have gone communal by standing only for their communities rather than standing for the society. So these things can be revoked just by, you can say, by educating people. That's it. More and more awareness programs are thrown across regarding simply taking medical fraternity taking pledges across the hospital doesn't solve the problem. It has to go to the grassroots level, जहाँ 8th standard का बच्चा
स्कूल का, मिडिल स्कूल का बच्चा समझे कि ऑर्गन डोनेशन भी कोई चीज होती है, इससे बेनिफिट होता है, कौन कर सकता है, You are saving lives of others. Yes, they are saving lives of others. Secondly, the mythology, Ah, the that's religious beliefs. It's a setback. Religion is, I won't say setback. Basically, it's, after all, you are human. Basically, you will function as you feel. सब कुछ जो संवेदनाएं हैं आपकी अपनी व्यक्तिगत है. उसी से मैं विष्णु पुराण भी पढ़ता हूँ, मैं गरुड़ पुराण भी सुनता हूँ, सही. पढ़ता नहीं हूँ. Right. तो सामाजिक व्यवस्था बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. आप जिस व्यवस्था के साथ हैं, तो किसी भी अवेयरनेस को किसी भी चीज को बढ़ावे के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही हैं जो इन चीजों को बढ़ा सकते हैं. वही एक हमारे यहाँ एक वर्ग ऐसा भी जो स्पिरिचुअली इसको गलत मानता है. वही बात मैं कह रहा हूँ, टेबू है कि भाई आत्मा है तो फिर आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगी अगर ये जो खंडित हो गया शरीर इसमें से कुछ कपाल का महत्व नहीं रहेगा, कपाल क्रिया का महत्व ही नहीं रहेगा, ब्रह्म कपालिक श्राद्ध का महत्व नहीं रहेगा, तो मेरी हिंदू माइथोलॉजिकल बिलीफ्स जो है वो इफेक्ट हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं करता. तो वो अवेयरनेस के लिए वो डिबेट चालू होना चाहिए. 8th स्टैंडर्ड के बच्चे में जब उसका दिमाग विकसित हो रहा होता है कि these are two platforms. somehow religious people also this thing. आप सेलेक्ट कर लें, आपको करना क्या है. वो कब कर पाएंगे जब आपके पास दो चीजें आमने सामने बराबर रखी जाएगी तब. हम इसको कब रख लें. ऑर्गन डोनेशन का बहुत घट है इंडिया में. पर सर आप यकीन मानिए कुछ दिनों में लोग आर्टिफिशियल डेवलप कर लेंगे ऑर्गन डोनेशन से भी आगे बढ़ जाएगा मेडिकल साइंस. पीपल विल डेवलप आर्टिफिशियल ऑर्गन्स. सर अभी एक ऐसा दौर आया है कि युवाओं की मृत्यु दर में चिंताजनक बढ़ोतरी सामने आई है दिल के दौरे से. तो क्या खान पान की कमी है या इज इट अ बिग क्वेश्चन फॉर बेसिक लाइफस्टाइल है सर. मेरी नजर में लाइफस्टाइल चेंजेस है. अच्छा, नॉट ड्यू टू कोरोना और एनी आफ्टर इफेक्ट. सर लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ. खाने पीने रहने कमी. आप जितने भी खेल के मैदान है देख लीजिए, क्रिकेट के सिवा दूसरा कोई खेल खेलता हुआ आदमी नजर आता है. कॉर्पोरेट वाला इसलिए घूमने जाता है कि मेरा पेट बाहर नहीं निकल आए. स्टूडेंट्स हैं वीडियोस पे हैं, लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे. तो यूनिवर्सल डिबेट चल रहा है सर आज का सबसे. जो भी आज यंगस्टर, आज मेरी उम्र का आदमी भी डायबिटिक हूँ मैं अभी 12 साल से. I have judged myself, I have assessed myself, and I am sure I have developed this habit because of my lifestyle. Today I am practicing a very good lifestyle, but 10 years back I was not that disciplined what I was supposed to be. So but why they are dying because of only heart attacks? ये सर वो लाइफस्टाइल प्रोपेगेंडा नहीं सर. It's easily picking up disease है. हार्ट इज द मोस्ट मेजर इंस्ट्रूमेंट. जिस दिन से आप पैदा होते हैं तब से फंक्शनिंग में होता है. और मोस्ट मेजर ऑर्गन्स में वन ऑफ द मेजर ऑर्गन्स है. पीपल फाइंड डिफिकल्टीज विद दैट. एंड आई बीइंग अ नॉन टेक्निकल गाय, मैं तो इतना जानता हूँ कि दिल साफ रखना चाहिए, शरीर अपने आप साफ. सही बात है सर. मैनेजमेंट क्षेत्र में सफल होने के लिए आप युवाओं को क्या सलाह दे सकते हैं. फ्यू पॉइंट्स आप पहले भी कुछ तो बता दिया है जो पुरस्कार हो अवार्ड्स वगैरह में, लेकिन स्पेशली मैनेजमेंट में सफल होने के लिए क्या 3-4 क्वालिटी आप में होनी ही चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपने टेस्ट को पहचाने. क्या आप वाकई में उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं. डू यू लव मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मैंने आपको बोला ना कि पहले तो आप स्वयं निर्धारित करें. इंडिया में कई लोग हैं जो इसके अंदर बाई फोर्स. मैं साइंस नहीं कर सकता था इसलिए मैंने आर्ट्स कर लिया, आर्ट्स नहीं कर सकता इसलिए मैंने कॉमर्स कर लिया. हम आधे विषय उसी हिसाब से पढ़ते हैं कि साइंस नहीं पढ़ सकता था इसलिए मैंने कॉमर्स पढ़ लिया, कॉमर्स नहीं पढ़ सकता था इसलिए मैंने आर्ट्स पढ़ा. तो मैनेजमेंट कोई है तो ऐसा सर इज एज गुड एज टेक्निकल एज व्हाट इंजीनियरिंग एंड द पीपल डोंट नो दिस. मैनेजमेंट उतना ही संजीदा विषय है जितना कि मेडिकल प्रोफेशन है. चाहे MBBS कीजिए, चाहे आप चार्टेड अकाउंटेंट कीजिए, चाहे आप इंजीनियरिंग कीजिए. These all technical, these are completely technical tools. Management study is completely a technical tool. और आने वाले टाइम में बाकी के जो सर्विसेज हैं, चाहे वो क्लिनिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, it will be completely linked with management. इन सब चीजों को मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट will come at the top. Right. With the advancement of AI. मैनेजमेंट में क्या होगा something? मैनेजमेंट से कोई रॉकेट साइंस नहीं है. हाँ. ह्यूमन साइंस है सर. ह्यूमैनिटेरियन साइंस. इट्स कॉमन साइंस. आप जो कॉमन सेंस आप जिसको कहते हैं आप, दैट कॉमन सेंस इज मैनेजमेंट. राइट. टू रन दैट, टू मेक दैट कॉमन सेंस हैपन इन अ टेक्निकल वे इज मैनेजमेंट. अच्छा. यूजिंग दोस टेक्निकल टूल्स यू आर यूजिंग योर कॉमन सेंस.
Right. सिर्फ आपके घर पे कोई आगंतुक आया, आपने घंटी बजाई, मैंने गेट खोला, शिष्टाचार से मैंने आपके हाथ जोड़े, आपको वेलकम किया और बैठने के लिए आसन दिया, ये एक्टिविटी होटल में होती, लोग कहते हैं चेक इन हो रहा है। राइट। रिसेप्शन पे मैं खड़ा हूँ, मैंने आपको रिसीव किया, आपको बैठने के लिए बोला, कंसार्ज पे गया, मैंने आपका रजिस्ट्रेशन किया, एक आदमी आया, मेहमान आए, आप मेरे घर आए, मैंने आपका सामान उठाया, आपको अतिथि कमरे में ले गया, आपको ठहराया। अब ये क्या मैंने कॉमन सेंस है कि कोई भी आदमी आएगा, घर दरवाजा खोलोगे, नमस्ते ही करो। राइट। तो मेरा ये मानना है कि कॉमन सेंस को एग्जीक्यूट करना विद टेक्निकल टूल्स इज मैनेज, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट कॉमन सेंस इन प्लेस एंड यू शुड बी सेंसेस कि मैं ये करना चाहता हूँ। फिर आप चाहे होटल मैनेजमेंट करें, चाहे इंडस्ट्री मैनेज करें, चाहे हॉस्पिटल मैनेज करें, किसी भी चीज को मैनेज करें, या स्कूल के प्रिंसिपल बन के प्रिंसिपल को मैनेज करें। और हर जगह के लिए कोई पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, वो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कुछ डिग्रीज है। और आजकल तो सर गूगल का जमाना, नेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। और तो यही भी आ गया, चैट GPT बोलता है, एनीथिंग यू वांट टू सर्च इट, एंड गुरु बिना ज्ञान, किसी न किसी को उस फील्ड में आपको गुरु बनाना पड़ेगा। यही बात है। आपकी रूह को अगर तारना है तो गुरु तो बनाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपको बड़ी आत्मीयता के साथ कोई सिखाने वाला व्यक्ति है, तो आप मान के चलिए आपको कामयाबी हर पल मिलेगी। यू हैव टू कंसिडर समबडी एज योर टीचर टू गाइड यू, चाहे वो फ्रेंड ही हो, आपका दोस्त ही हो, फिलोसोफर हो, कोई भी गाइड हो, बट वो आपको आवश्यक रहेगा। आपकी गलतियां कम होगी। बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू विल परफॉर्म एनीथिंग यू वांट टू डू। सर आपने बहुत 5 सितारा होटलों में काम किया और अस्पतालों में, और बहुत बढ़िया सिद्धियां प्राप्त की, राइट। उसमें आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट फॉर यू? और हम बोलते हैं ना, सफलता के पीछे कोई ना कोई आपको मदद, सपोर्ट मिलता रहता है। अकेले तो आदमी दौड़ नहीं सकता। Whatever you achieve, basically, you are successful just because of your family and your friends only. So, हम उनके मुताबिक कर पाए नहीं, वो एक अलग प्रश्न है। उनकी हमारे से क्या अपेक्षा थी, लेकिन हमें जो अपेक्षा उनसे थी वो उन्होंने फुलफिल करी, तभी तो हम कामयाब हुए। So in fact, they were successful. They were successful. It was vice versa. Right. Vice versa. And so we became successful. कि कभी हमने पूछा ही नहीं कि आपको हमसे क्या अपेक्षा है। हमें जो अपेक्षा थी वो बिना बोले पूरी होती गई। उसका नतीजा ये हुआ कि हम घर में ज्यादा, काम में ज्यादा इन्वॉल्व रहे, और कामयाबी हमको कम उम्र में मिली। सही बात है। हम तो आज शुक्रगुजार है अरविंद सिंह मेवाड़ के, 29 साल की उम्र में उन्होंने हमको मैनेजर ऑप्स बना दिया। जब लोग सुपरवाइजर भी नहीं बन पाते, उन्होंने हमको इतना काबिल बना दिया कि हम 29 साल की उम्र में एक 5 स्टार 5 सितारा होटल में 29 साल की उम्र में मैनेजर बन गए। एक्सेलेंट। किसकी वजह से? वो किसी व्यक्ति का जिसको आप में आस्था थी कि ये कर देगा, नहीं करेगा तो मैं इसका हैंड होल्डिंग करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी के करियर में जो होती है ना सर, आपका हैंड कौन होल्ड कर रहा है। तो जब आप अधिकारी बन जाए तो अपने से नीचे वालों का हमेशा हाथ होल्ड करें, होल्ड देम हाई। सही सीख। इफ यू डोंट होल्ड देम दे विल बी नोवेयर, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद अस। हमको तो इतने बड़े आदमी ने हैंड होल्ड किया कि आप समझ ही नहीं सकते। हमारा कॉन्फिडेंस इस कदर बूस्ट हुआ कि सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती गई कि somebody is holding your hand for a very good position। तो आप क्या करेंगे? आप फिर घड़ी भी नहीं देखेंगे, और फिर उस घड़ी के बीच में मैं आपके इस प्रश्न का जवाब देता हूँ। आपके उस घड़ी के नहीं देखने के स्वभाव में आपका फैमिली आपको परेशान नहीं कर रहा है। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। दैट इज द बिगेस्ट थिंग एंड दैट इज योर रीजन फॉर सक्सेस। जिनका फैमिली बिना बोले कोऑपरेट करता है, वही लोग बाजार में बहुत कामयाब होते हैं। मैंने मेरे कई अधिकारी देखे हैं जिनकी जिंदगी बिल्कुल ऐसी रहती है कि वो अपने घर किसी दोस्त को चाय पीने नहीं बुला सकते, इतने घबराए हुए रहते हैं। मेरे जीवन का किसी को खाने पे नहीं बुला सकते, किसी के यहाँ जा नहीं सकते। और ये भी रहता है ना सर कि भावनात्मक रीत से फैमिली का जो सपोर्ट होता है, कभी हम फेल हो जाते हैं, कभी बहुत थक जाते हैं, निराश होते हैं, तभी उनका जो होता है हौसला बुलंदी का जो रहता है। उसमें सर मेरे मदर जो है, मेरे खुद के मामले में मेरे पिता माँ थे, मेरी माँ पिता थे। इस प्रश्न के जवाब में जब ये प्रश्न अगर मेरे से कोई पूछता है, मैं अभी भी नौकरी से बाहर आया जब दूसरे जॉब में जाने के लिए, तो मेरी मदर का क्या जवाब हो सकता है और मेरी पत्नी के 2 डिफरेंट जवाब थे। मेरी माँ का जवाब तो ये था कि जो चोंच देता है वो चुका देता है, यू कीप ट्राइंग योर बेस्ट। Whereas wife considering the age, she was more concerned what is going to happen next, because वो उम्र के जिस पड़ाव पे वो उस तरीके से सोचते हैं, ये इस उम्र के इस पड़ाव पे ये इस तरीके से सोचते हैं। 2 डिफरेंट सोच के बीच का बैलेंस जो होता है वो आदमी का होता है। तो इसलिए आपका जो ये प्रश्न था ना कि परिवार का कितना सहयोग है,
तो आदमी कहाँ पहुंचेगा। तो इस तरीके से फैसले लेने पड़ते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। वो रिस्क तो रहता है, तो नई जगह का नया चाम होता है, नया मजा होता है। हाँ। और मैं मानता हूँ हर जगह बेहतर होती है, हर जगह बढ़िया होती है, और नहीं होती है आप अपने अनुभव से बनाइए बेहतर। और फिर लोगों का एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए कि यू हैव मेड इट अ डिफरेंस, और वही तो आदमी का अचीवमेंट होता है किसी भी अवार्ड से बड़ा। आपकी टीम का एक्नॉलेजमेंट। सही बात। और पिता जो माँ के जवान थे वो इस तरीके से थे कि वो अलग तरीके से सेफ गार्ड करते थे। वो हमेशा स्किल इनहेंसमेंट पे जोर देते थे। और ही यूज्ड टू बी माय डेविल्स एडवोकेट, शैतान का वकील, उसका उल्टा बोलते थे। बोले कितने नंबर आते हैं, पेपर दे के आए। मैंने कहा अपने तो 70 आ जाएंगे। बोले इसको ऐसा करो यार, एक तिहाई से मल्टीप्लाई कर दो, +10 कर दो। यार 70 को एक तिहाई कर दूंगा तो 22 होंगे। बोला 1033 पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले आई वांट टू हियर दैट आउट कि नहीं मेरे 70 का पेपर किया, 55 आएंगे, दैट शुड बी योर असेसमेंट लेवल। तो वो गया, ही यूज्ड टू बी अ डेविल्स एडवोकेट। तो उससे क्या हमेशा हमारा चैलेंजिंग फैक्टर जिंदा रहता है। राइट। नहीं तो एवरीबडी बिकम यस में, नहीं बेटा तू तो रात को बहुत देर तक पढ़ रहा था, पढ़ जा, मास्टर ही बेवकूफ पे नंबर देना नहीं आता है, तू तो बहुत अच्छा पढ़ता है। उस कल्चर के उसको आगे बढ़ने का वो पैदा ही नहीं होगा, प्रोत्साहन ही नहीं मिलता उसको। अगर आपके घर में खिंचाई हो रही है तो आप मान के चलो आप मजबूत हो रहे हैं। अगर आपके घर में खिंचाई नहीं हो रही है तो आप कभी अच्छे स्कॉलर नहीं बन सकते, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते, मोटिवेट नहीं होगा। यस, एंड कन्विंस देम। तो पहला कन्विंसिंग फैक्टर तो घर में हो गया, तो दुनिया तो अपने आप कन्विंस हो जाएगी। क्योंकि वो आपको छोटी मोटी बात में हाँ करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट जीत के आया, क्या है स्टेट खेलना बाकी। अगर बढ़िया बढ़िया करोगे तो आगे बढ़ने की सोचेगा ही नहीं, और उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल? राइट। The day you won first criticism should also be not there. The critical eye has to be there. Criticism should not be there. Right. It's a thing to remember. Critical eye should be there. But criticism नहीं होना। Critical eye means you are going to give me corrective factors. ये देखने वाला है, वो वॉचमैन है। Yes. ये critical eye तुमने यहाँ गलती करी, तुमने वहाँ गलती करी, उसको ऐसे सही कर सकते हो। And critical eye with a solution. My father used to say, which I believe बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा. You are the best judge for your actions. So don't bluff yourself. अंदर तो पता होता है ना। You are the best judge for your actions. So please do not bluff anybody. Believe in yourself. And seeing is believing, and doing is learning. करके ही सीखा जा सकता है और देखने पे विश्वास हो। ये होता है। आपके करियर में अब तक का सबसे चैलेंजिंग काम कौन सा है? Oh, there were plenty of them. रिसेंटली हेल्थ केयर में तो कोविड था, हैंडलिंग ऑफ कोविड सिचुएशन। और होटल इंडस्ट्री में देवर मेजर मेगा इवेंट्स, लाइक होल्डिंग दोस वीआईपी वेडिंग्स एंड होल्डिंग दोस एमएमसी अवार्ड फंक्शन खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होता था। व्हाट वाज दैट? महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन अवार्ड्स hosted by the royal family, and secondly was I did one wonderful show called Grasim India International. अच्छा। That was a learning platform for me. उसमें कोई हैपोसाइड सिचुएशंस भी हुए, पुलिस के घोड़े भी दौड़ गए, धक्का मुक्की भी हो गई, पर पेशेंसली बड़े पेशेंस के साथ हमारे बॉस ने एक इंक्वायरी बिठाई। इंक्वायरी इज सच कि डू इट एज अ केस स्टडी। ओह राइट। What went wrong? From that day onwards, whenever I go wrong, I do a small case study on my table desk. Even if I implemented something and it has backfired on me, I will do my case study. And I'll close that book. And I have a note of diary with me since last 2003. Right. That diary is with me. उसके रेफरेंस में मैंने कौन सी ईमेल आईडीज पढ़े, कौन सी वेबसाइट्स पढ़ी, क्या नोट्स पढ़े और उसका कंक्लूजन क्या निकाला। तो that helped me out developing a practice of doing case studies. Be your own critic. Why you need anybody else to criticize you? कोई भी मिस्टेक दोबारा ना हो। शॉक प्रूफ होने के लिए। क्यों आप मैन मैनेजमेंट में हो, once a situation handled will can come back again. किसी दूसरे रूप में आ सकती है समस्या, लेकिन यू विल ऑलवेज बी एबल टू फॉर्मेट कैन चेंज, प्रॉब्लम रिमेन द सेम। कभी भूकंप आ गया तो सेम हालात पैदा हो गए जैसे, तो उसमें भी क्या कैसे करना है, अप्रोच तो वही रहेगा। सही बात। आपने जो कुछ हासिल किया है, क्या आप सामान्य तौर पर अपने जीवन से संतुष्ट है या आपको कोई रिग्रेट्स है? What you have done so far? सर मैं आई वॉज लकी इनफ, मैं अपने आप को बड़ा किस्मत वाला खुश मिजाज समझता हूँ
खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे को अच्छे से खुश मिजाज भी है आप। खुश मिजाज तो रहना पड़ता है सर, और खुश नसीब हूँ कि मेरे को हर बार इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म्स पे काम करने को मिला कि मेरे को कभी राइट लेफ्ट देखना नहीं पड़ा, सोशल स्ट्रक्चर जो रहा। अच्छा। And maybe I was lucky enough, I was an average student, I did average things, but the platform which I got bigger, huge, was so big. So those platform itself became a learning lesson for me and I kept on moving. So regrets तो कुछ रहा ही नहीं। ये करता तो ये होता है ना, वो तो कभी करा ही नहीं, करके देख लिया। I did blunders also in my life, वो भी करके देख लिया, मुझे कोई अफसोस नहीं, because it was my decision. I came back, मैं ट्रेन से उतरा प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन में चल गई। ये है कि लोगों की नजर में हो सकता है मैं 5 साल पीछे चल रहा हूँ, अच्छा, तो मेरी नजर में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। राइट, नो रिग्रेट्स, वेरी सेटिस्फाइड। द मोमेंट आप रिग्रेट करते हो आपके साथ आपकी पूरी कायनात जुड़ी हुई है, आपका कायनात यानी कि आपका परिवार। तो व्हाई टू टॉक ऑफ रिग्रेट्स, लेट्स टॉक ऑफ अचीवमेंट, व्हाट यू हैव अचीव्ड एंड बी हैप्पी एंड मूव फॉरवर्ड। आप अगर किसी वो वाली बात है कि आई स्टॉप्ड आस्किंग फॉर शूज, दैट्स अ सेइंग इन इंग्लिश, आई स्टॉप्ड आस्किंग फॉर शूज व्हेन आई सॉ मैन विदाउट लेग्स। मैंने उस दिन जूतों की अपनी अपेक्षाएं बहुत ही होती है, मैंने जूतों की दरकार करना छोड़ दी, पर मेरे पास तो जूते नहीं, उसके पास पैर नहीं है, तो फिर रिग्रेट किस लिए? तो ईश्वर ने तो आपको इतना खूबसूरत बनाया है, इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है। मैं हर जगह ये बात लोगों को बार बार कहता हूँ, मेरे परिवार में अक्सर कहता हूँ कि आपको इंसान बनाने के सिवा भगवान कुछ नहीं कर सकता। आप कल्पना करो, इमेजिन आपको किसी गली नाले का सूअर बनाया होता है, कुत्ता बनाया होता है, आपकी जिंदगी क्या होती है? हम भाई लोग आपस में जब मिलते हैं तो ये मजाक करते हैं, तो उस ठिकाने से आता, मैं इस ठिकाने से आता, किसी नाली के नीचे पड़े होते, क्या होता? ईश्वर इससे बढ़िया आपके साथ कोई काम ही नहीं कर सकता कि आपको आदमी बना दिया उसने। लोग हमारा पावरफुल राजस्थान में लोग कहते हैं लिविंग थिंग ऑन अर्थ, मानव जमारा, मनक जमारा जैसे कहते हैं ना, राजस्थान में कहावत है मनक जमारा। इंसान का जमारा तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, एंड गॉड हैज गिवन यू दैट। वो बोलते हैं ना 84 करोड़ योनि, ऐसे आप मनुष्य जीवन में आए हो ना, आप एंजॉय कर रहे हैं लाइफ लाइक दैट, तो रिग्रेट नहीं सर। रिग्रेट क्या करता है? आने वाली नस्ल को भी खराब करता है और आपसे पहले वाली नस्ल को भी, और अपने को डाउन करता है। नो रिग्रेट। सर एक लास्ट क्वेश्चन के पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट के सिवा आपका जो विषय है, उसके सिवा आपके और कोई जैसे शेरो शायरी, कल्चर, साहित्य, लिटरेचर, उसमें आपका क्या रुचि है? सर मैं पढ़ने का शौक रखता हूँ, मैं स्कूल से रीडर, यू कैन से कि पढ़ने का शौक रखता हूँ, और पढ़ने का शौक वो रखता हूँ कि जिसमें मुझे आनंद आता है, वो मुझे पढ़ने से ही आनंद आता है। लाइक एंजॉयिंग रीडिंग, और रीडिंग में भी जब मैं बताता हूँ आपको, मैं मैनेजमेंट बुक्स पढ़ता हूँ, मैं लोगों की बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ता हूँ, और अबव साहित्य जो है, हिंदी साहित्य जो है, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है। चाहे वो पोएट्स हो, चाहे साहित्यकार हो, जैसे प्रेमचंद मेरे फेवरेट लेखक हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद का मधुलिका पढ़ता हूँ, अजातशत्रु पढ़ता हूँ, प्रेमचंद का गोदान पढ़ता हूँ, निर्मला पढ़ता हूँ, तो उसका कहानी संग्रह पढ़ता हूँ। तो ये जो राइटर्स रहे हैं, ईश्वरचंद, विष्णुचंद, विद्यासागर, बहुत जाने वाले, ये सब जो राइटर्स हैं, और टैगोर को पढ़ा मैंने, उसके ट्रांसलेशंस को पढ़ा, लेकिन रविंद्र संगीत में बड़ी रुचि रही पर सुनने में। हाँ, संगीत की बेसिक्स जो है जानकारी पिताजी से मिली, पिताजी संगीत के बड़े तगड़े जानकार थे, और मैं मानता हूँ कि संगीत में एक बड़ा अंग होता है जिसको कहते हैं ख्याल गायकी। मैं उसको अपने शब्दों में इस तरीके से कहता हूँ, जिंदगी में ख्याल बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे विचारों में ख्याल हो या अपने ख्याल में ख्याल हो, जिसे कहते हैं ना, संगीत में ख्याल हो, तो ख्यालों में तो बहुत कुछ होता है। तो म्यूजिक में ख्याल बड़ा पसंद है, ध्रुपद बड़ा पसंद है, और संगीत सुन के सीखा सर। बेसिक स्कूल गया, म्यूजिक स्कूल, पिताजी ने भेजा, स्कूल जाओ, छुट्टियों में क्या करते हो? पिताजी के दोस्त थे, आपने फेसबुक वो उनके साथ रह के सरगम वहाँ सीखा। मैं, मेरी बहन हर छुट्टी में संगीत स्कूल जाते हैं, वहाँ बेंजो बजाना सीखा, संगीत के सुर सीखे बेसिक। तो मैं मेरे पिता के बड़े नजदीक रहा, मोर लाइक मैं बताऊँ, मैं उनकी समस्या को बिना बोले समझ जाता था, और वही मेरा उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग था। परिवार में छोटा था सबसे, लेकिन लोग अक्सर माँ के नजदीक होते हैं। मैं सोच में मेरे फादर को बहुत फॉलो करता हूँ आज भी। वो कहते हैं बेटा, जैसा पढ़ते हैं ना, वैसी तरंगे शरीर में उत्पन्न होती है। तो मैंने उसके साथ उनकी दी हुई कई पुस्तकें पढ़ना शुरू की। मैंने नीति शतक पढ़े, भरत ऋषि ग्रंथ, राजा विक्रमादित्य के छोटे भाई थे भरतहरि, उन्होंने 3 शतक लिखे।
नीति, श्रृंगार, वैराग्य, हम्म, और जब उसको मैनेजमेंट में यूज करने लगा राइट, तो मैनेजमेंट बिकेम वेरी इजी. व्हेन देयर इज ए वैराग्य सिचुएशन डेवलप होती है तब आपको कैसे रिएक्ट करना है. राइट, जब श्रृंगार की बात आती थी सबसे पहले भाषा का श्रृंगार. हाँ, यस, आपकी भाषा speech कितनी को खूबसूरत, ना- योर स्पीच, तो भाषा का श्रृंगार है, उसके बाद शरीर का श्रृंगार है, उसके बाद स्त्री का श्रृंगार है. तो श्रृंगार तो कई प्रकार का है. राइट, मौन में भी श्रृंगार है. तो मेरे पिता जो है वो मेरे गुरु समझता हूँ, इनको मैंने अपना गुरु मान रखा था. मैं आई वर्शिप हिम लाइक एज इफ वो मेरे से आज भी मेरे साथ हो. मैं कहीं परेशान होता हूँ, परेशानी में होता हूँ तो भी उन्हीं को याद करता हूँ. और यू कैन से कि मेरा इमोशनल कनेक्ट उनके साथ ऐसा कि मेरी समस्या मुझे खत्म होती नजर आती. इमोशनल कनेक्ट इज सच. तो साहित्य में रुचि रही, संगीत में रुचि रही. मैं आज भी गेम्स को उतनी ही तल्लीनता से देखता हूँ, चाहे गली में बच्चे खेलते हो. मैं खुद भी खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ. मैंने बास्केटबॉल खेला, मैंने हॉकी खेला, मैंने उसके बाद इंडोर गेम्स खेले. पर क्या है कि ये सब चीजें जो है ना आदमी को जीवंत रखती है. हाँ, मैं आज भी अकेला बड़ा Definitely. घंटों बास्केटबॉल मैच देखता रहता हूँ, एनबीए के, हॉकी टूर्नामेंट देखता रहता हूँ. एनर्जी लेवल बढ़ाए रखते हैं। यस, आपकी जीवंतता जो है अंदर, जीने की क्षमता को बढ़ाता है साहित्य. माइंड को भी फ्रेश रखती है. फूड फॉर द माइंड. हाँ। आपके मस्तिष्क को भोजन कहाँ से भोजन मिलेगा? वो साहित्य से मिलेगा. जैसे बालकों में खेलना कूदना बहुत जरूरी होता है. मैं गुड जब फॉर देम. तो मैं जब गुजरात में आया सर तो मेरे को गुजरात की जीवन शैली ऊपर से पता थी. अच्छा, मैं यही रहता था मानसा से, यहीं से मैं कम्यूट करता था, मेरी नौकरी जाता था. Right. तो मैंने लोगों के संघर्ष को देखा बड़ा नजदीक से. फिर मैं एक पुस्तक खरीद के लाया, गुजरात की लोक कहानियां, 30 कहानियां, जो हिंदी में ट्रांसलेटेड थी. अच्छा, तो मेरे को सोसाइटी को, कम्युनिटी को समझना था. अच्छा, फिर मेरे को गाली देना समझना था. गुजराती में लोग गाली क्या देते हैं. हाँ, तो एक शब्द आता है आपके गुजराती डिक्शनरी में, अगरू, अगरू, हाँ, डिफिकल्ट. डिफिकल्टी. तो मेरे किसी स्टाफ ने किसी गेस्ट के साथ उसके दो गुजराती कस्टमर केयर में 2 आदमी बैठे हुए, अच्छा। सामने एक बंगाली नाम समझ के उसने उसके सामने गुजराती शब्द का इस्तेमाल कर दिया. एंड दैट बंगाली वाज अवेयर ऑफ दैट वर्ड. तो मैं आपको जो भाषा की बात कर रहा हूँ, Yeah. उसने अगरू शब्द इस्तेमाल किया. मैं घर गया, मैंने वो मेरी डिक्शनरी खोली, उसका मतलब देखा, मैंने कहा यार गड़बड़ है. और बड़ा हंगामा हुआ उस दिन. अच्छा। बंगाली गुजरात में था 20-25 साल से. तो आप ये मान सकते हैं कि जो भाषा का श्रृंगार है और जो साहित्य का साथ है और जो माइथोलॉजी की समझ है, ये आदमी को एडमिनिस्ट्रेटिवली तो बहुत संपूर्ण कर देता कर देता है. कि अस्पताल में गए हो, किसी घर वाले को ज्ञान देना है कि यार साहब ये तो प्राण नहीं निकल रहे, 18वां अध्याय पढ़ ले यार. अब आपको समझ है, 18वां पढ़ ले, मुक्ति हो जाएगी. फिर उससे अलग व्यक्ति कोई मिलता है आपको, ब्रह्म की स्थिति में मिलता है, चल जा 7वां अध्याय पढ़ ले यार. उसको जब वो शगुन मिलता है, पढ़ के अगर वापस लौटता है समझदार आदमी, तो वो आपको धन्यवाद देता है. तो आप गाइड भी तभी कर पाओगे, किसी के फिलोसोफर भी तभी बन पाओगे. गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर कब बन पाओगे? जब आपकी इन 3 चीजों में रुचि हो, रुचि होगी. स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर. फिर इसके अलावा तो सर कोई हॉबी बचता नहीं है. और फिर तो हॉबी का विस्तार तो करते ही जाओ आप. पेंटिंग भी है, ट्रैकिंग भी है, माउंटेनियरिंग भी है. यू कीप ऑन एडिंग ऑन थिंग्स. आई एम अ नेचर लवर, आई एम अ जंगल लवर, आई लव फिशिंग. तो मेरे अलग अलग कंसेप्ट हर आदमी के. और सर रीडिंग का एक मैं एडवाइस आपको, सजेशन सबको देना चाहता हूँ. राइट. जितनी भी यंग जनरेशन है, एज अ हॉबी कोई सा भी एक टॉपिक ले साल भर के. अच्छा. से फॉर एग्जाम्पल यू हैव इंटरेस्ट इन हॉर्सेस, तो आप घोड़ों के ऊपर अपना लिटरेचर मटेरियल और पढ़ना शुरू करिए. दुनिया में कहाँ कहाँ घोड़े होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने How नस्ल they are होती trained, है. क्या तो आप करते सोचिए हैं. अगर इस तरीके से एक साल का एक विषय लेते हैं 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से, जहाँ से आपको समझ आना शुरू होती है 5वीं क्लास के बाद, मिडिल स्कूल 6 क्लास से लेके, और उसके पेरेंट्स उसको गाइड करें, तो 12वीं आते आते वो 7 सब्जेक्ट का जानकार तो वैसे ही हो जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल आपको एक साल तक आपको सिर्फ ज्योग्राफी पढ़नी है, इंडिया ज्योग्राफी, एशिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी. एक साल के अंदर आप 1 घंटा रोज ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 365 दिन, या 60 दिन निकाल 300 दिन भी पढ़ते हैं, तो आप सोचिए आपके दिमाग में कितना वर्ल्ड का ज्योग्राफी बैठा रहेगा. उसी तरीके से आपने इतिहास पकड़ा है, वैदिक कल्चर पकड़ा है, इंडियन सिविलाइजेशन पकड़ा है, कोई भी एक सब्जेक्ट एक साल के एज अ हॉबी पढ़िए. दिस कंट्री विल बी फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. आदमी को सीखने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बाय द टाइम वो 12th स्टैंडर्ड में होगा, वो जेईटी, आईआईटी, पीएमटी आराम से पास करेगा. सही है. सेवरम क्ले पॉटरी पढ़ना है आपको. क्ले पॉटरी का आप हिस्ट्री से लेकर फिर उसका एंड टू एंड चीज पढ़ सकते हैं. तो ये मेरा एक सजेशन सबको रहता है कि भाई कोई एक विषय सेलेक्ट कर पकड़ ले, तो उसमें मास्टरी आ जाएगी. इसलिए ओल्ड सही है ना सर कि
द नेशन दैट रीड्स, द नेशन दैट लीड्स। जो राष्ट्र पढ़ेगा वो लीड करेगा। और गुजरात का डेवलपमेंट का लोग जो कारण समझते हैं, 1819 में 1833 में लोथल से जहाज चला, 100 साल पहले आदमी यहाँ से व्यापार करने क्यों निकला? बाहर निकला तो अक्षर ज्ञान लेके आया। हिस्ट्री ऑफ पेलियोलॉजी, अक्षर ज्ञान, एजुकेशन केम टू गुजरात एंड दैट्स हाउ वी आर टुडे। मैं तो मानता हूँ सर कुछ भी अचीव नहीं किया है, जिंदगी को जिया है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो कल्चर, संस्कृति के बिना आदमी पशु समान है। नहीं सर, देयर इज नो डिफरेंस। अदर कोई तो है नहीं सर, लोगों रिश्तों को जीना पड़ता है। अगर जिंदगी को आपको अपना अचीवमेंट देखना है तो आप कितने रिश्तों को जिए हो। कब मामा से मिले, कब बुआ से मिले, कब मासी से मिले, कब दोस्तों से मिले, कब गांव के लोगों से मिले, कब अपनों से मिले। अचीवमेंट की मेरी परिभाषा तो ये कहती है अपनों के बीच में कितने रहे आप और अपने आप के साथ कितने रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बाकी these all are labels of breads and holding positions is for your bread and butter. बाकी as an individual साथ देते रहें, साथ लेते रहें। Life should be keep moving, keep moving। मेरा तो एक ही फलसफा। स्टैग्नेंट तो पानी भी सड़ जाता है, विचार भी सड़ा गला हो जाता है। विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। सही बात है। विचारों में परिवर्तन कब आएगा? अगर मैं सामने वाले को सुनूंगा तो हो सकता है मैं मेरे विचारों में परिवर्तन लाऊं। जब मैं लिसनिंग की आदत ही नहीं, हम तो हियरिंग मोड में रहते हैं, लिसनिंग मोड में तो रहते ही नहीं। सही बात है। तो जब आप सुनने की प्रवृत्ति रखेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। आप अपने करियर और कार्य क्षेत्र में बहुत सफल हुए हैं। आप एक महान पारिवारिक व्यक्ति भी हैं जो हमने सुना। आपका जीवन दर्शन क्या है? व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ योर लाइफ? आपने बहुत कुछ बोला है, लेकिन टू बी स्पेसिफिक इन फ्यू वर्ड्स, फिर व्हाट इज योर फिलोसॉफी? जीवन दर्शन गीता रहस्य है। गीता रहस्य, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड मेरा लोगों को मेरा लोगों से एक ही कहने का है, जीवन एक संघर्ष है। जीवन एक स्ट्रगल है, संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष है। बड़ी मशहूर पुस्तक भी है इसके ऊपर, जीवन संघर्ष। गीता प्रेस गोरखपुर की बड़ी मशहूर पुस्तक है जीवन संघर्ष। आचार्य का नाम है, याद नहीं आ रहा अभी, मेरे कलेक्शन में है। राइट। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा जीवन दर्शन दूसरी चीज है। आप जीवन दर्शन हो जाना, जीवन दर्शन कैसे बदलता है? गीता रहस्य ही जीवन दर्शन है। वो ब्रह्म भी है, संशय भी है, मुक्ति भी है। तो जो आपका गीता रहस्य है वही जीवन दर्शन है। वो आपके मृत्यु तक आपको समझ में नहीं आए। मोक्ष की अभिलाषा है, लेकिन मोक्ष के लिए प्रयास नहीं। अभिलाषा मुझे हर चीज की है। मुझे अभिव्यक्ति की अभिलाषा है, मैं अभिव्यक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन श्रोता नहीं है। श्रोता को क्यों? श्रोता को कर्ण प्रिय बात ही सुननी, उनको कानों को प्यारा लगी वही सुनना चाहिए। सोक्रेटिस को नहीं सुना, उसके मरने के बाद पूछा। गैलीलियो को जिंदा जला दिया, उसको उसके मरने के बाद पूछा। तो द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड रिकॉग्निशन, योर सफरिंग स्टार्ट्स। डू नॉट लुक फॉर एक्नॉलेजमेंट। यार उसने नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। वो चांदले का रजिस्टर लेके जैसे लोग बैठते हैं ना, बदले का रजिस्टर, है ना, उसने किया तो मैं भी करूंगा। व्हाई यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट? क्या आप किसी के घर को अपने दिमाग में भी नहीं रख सकते, मस्तिष्क में? वही इसलिए रखते हैं कि भाई 100-150 चांदला आया है तो फिर उसके उसमें 100-150 करेंगे। आपकी नियत तो आप कुछ भी। आपने, मैं आपके घर पे आया, आपके घर पे देसी घी था, आपने रोटी में 2 चम्मच लगाया, मैंने मेजर तो नहीं किया। अभी लिख, अभी ये जमाना आएगा लिख लेंगे 2 चम्मच नहीं लगाया। मेरा आपसे कहने का मतलब, आपको 2 चम्मच घी किसी ने लगा के दिया, आपके घर पे आया, आपके उस साल गाय नहीं थी, दूध नहीं था, घी नहीं था, फिर भी आपने उसको खाना तो खिलाया। और यह हो सकता है वो आपके घर आया, आपके पास बहुत डेयरी फार्म चल रहा था, आपने उसको पूरा कटोरी भर के घी में हलवा बना के खिलाया। तो मेरा यह मानना है कि जहां आपने एक्नॉलेजमेंट और अपेक्षा करी, वहां आपका सफरिंग शुरू हो जाए। जीवन दर्शन तो अपना तो कहता है सर जियो और जीने दो, खुद भी मजे से जियो, सामने वाले को आराम से जीने दो, उसकी भी सुनो, अपनी भी कहो। ये सफर ऐसे ही कटेगा। जब आप सुनने को तैयार नहीं है तो क्या सीखोगे? और जब आप समझने को नहीं तैयार हो तो समझा क्या सको? ईश्वर ने तो साक्षात ब्रह्मांड आपके हाथ में दिया, अभी कमल भी आपके हाथ में दिया, शिव भी आपके हाथ में दिया, ब्रह्मांड में दिया, सब कुछ। 7 चक्र आपको दे दिए, 108 मणियां आपको दे दिए।
और सबसे बड़ा मानव जन्म दे दिया इंसान का जन्म। इंसान का। आप अपेक्षा करो उतना ही कम है। हमारे माँ कहा करते थे कि आज भी कहते हैं कि हम कभी परेशान हो जाते थे, चिढ़ जाते थे किसी बात को लेकर, ये हमारे साथ गलत हो गया, तो बोलते थे तुम इधर पैदा हो, इससे 500 मीटर इधर पैदा होते थे अरविंद सिंह मेवाड़ होते, लक्ष्मण सिंह मेवाड़ होते, 500 मीटर इधर पैदा हुए, तुम्हारी हवेली यहाँ थी, उनका पैलेस यहाँ था, आधा किलोमीटर इधर पैदा हुए, आधा किलोमीटर उधर पैदा हो जाते। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पॉजिटिव acceptance इन लाइफ। डेस्टिनी हाँ, डेस्टिनी plays a very important role, and destiny becomes very effective जब आप उससे कुछ अपेक्षा नहीं करते, उसकी साधना करते हो। अब अपने प्रारब्ध को पूछो, आज मैं मजे कर रहा हूँ नॉट बिकॉज ऑफ दिस जन्म, तेरे कहीं खाते में लिखे पड़े होंगे, उसका मजा मेरे को अभी मिल रहा है। राइट। बहुत अच्छी फिलोसॉफी है, बहुत सुपर फिलोसॉफी। फिलोसफी क्या सर, ये तो दर्शन है। हिंदी में दर्शन कहते हैं। हाँ, जहाँ फिलोसफी जहाँ जो फरमाया से मैं कहता हूँ कि जैसे धन की गति क्या, धन की 3 गति, दान में लाओ, भोग में लाओ, नहीं तो स्वतः नाश होता है। ये मैं नहीं कहता, राजा भरतहरि कहते हैं नीति शतक में। वो वैराग्य की परिभाषा क्या, एक होता है शमशानी वैराग्य, एक संसारी वैराग्य, कि आपको कोई भी तामसिक प्रवृत्ति में आपका आकर्षण ही नहीं होता उसकी प्रति, आप उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होते हो, वो भी एक प्रकार का वैराग्य हो गया। और उसी तरीके श्रृंगार है, आप स्त्रियों का श्रृंगार नहीं, आपको भाषा का श्रृंगार पसंद आता है, साहित्य का श्रृंगार पसंद आता है, लोगों की बातचीत का श्रृंगार पसंद आता है। आप श्रृंगार देख किस में रहते हो, आपकी नजरिया क्या है? तो दर्शन को खूबसूरत बनाना सर आपके और हमारे हाथ में। हमारा दर्शन बहुत खूबसूरत हो सकता है, अरे यार मेहमान आगे कब जाएगा, आप उसको तो एंजॉय नहीं कर रहे हो, वो आया उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप उसके जाने का इंतजार कर रहे हो, उसको एंजॉयमेंट समझ रहे हो। वो आदमी आया है, आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो फिर आप तो ना तो वैराग्य में आते हो, ना नीति के तहत आते हो, ना श्रृंगार में आते हो, आप तीनों कैटेगरी में नहीं आते। किसी ने पूछा किसी व्यक्ति से कि आप विश्वास, साधना और आस्था, विश्वास, साधना और आस्था किसमें विश्वास करते हो? विश्वास में करते हो, साधना में करते हो, आस्था में। तो अगर आप बोलते हो मैं तो विश्वास करता हूं, तो फिर तर्क क्यों करते हो? मैं साधना करता हूं, तो विश्वास भी तो अपने आप ही आ जाएगा। और आप अगर आस्था वाले आदमी हो, तो विश्वास और साधना तो साथ ही घूमेगी आप। आई हैव बिलीव, मैं आस्था है मेरी, तो मेरे विश्वास को कोई हिला नहीं सकता, और जब विश्वास को कोई नहीं हिला सकता, मैं तो मेरी साधना में मस्त हूँ। तो ये जिंदगी खुद ही अपने दर्शन में आपको बोल रही है कि यू हैव फेथ इन मी, मैंने तो वो इंसान बनाया है, तू मुझ में विश्वास कर, तेरा साधना अपने आप हो जाएगा, जीवन सज जाएगा आराम से। जीवन साधने की चीज है ना। सही। तो ये 3 चीजें हैं। अगर आपको यू ट्रस्ट एनीबडी, यू ट्रस्ट हिम। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना टाइम दिया और हमको ये साक्षात्कार का मौका दिया। अरे सर, अब इस पर मैं क्या कहूँगा आपको, चलते चलते मजाक की बात है, श्रोता नहीं मिलते, आपने गिविंग अप टाइम, उसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रिया। हम तो ये कार्य पहले से ही कर रहे हैं। विचारों की अभिव्यक्ति है, मुझे लगता है अगर अच्छी लगे, कहीं मेरे से कहा कुछ गलती हुई है तो भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या आता है कि कभी कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं है।